entrepreneurs. मैंने कहा youth are entrepreneurs, but then again there are older people as well, the retired people as well, जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपना स्टार्टअप किया है, entrepreneur बने हैं वो लोग। उन्होंने सारी उम्र जॉब की है and then after the retirement they have started. एंड फॉर एग्जाम्पल यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स तो बहुत हैं, आयुष्मान सिन्हा है, रितेश अग्रवाल है, बहुत सारे यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं। लोकल लेवल पे भी बहुत होंगे, आपके अमृतसर में भी बहुत होंगे, मेरे जलंधर में भी बहुत है। लेकिन एक स्टडी हुई है अमेरिका में, Americans between ages of 35 to 44, they represent the largest increase in entrepreneurial activity from 2008 and 2009. Americans between ages 55 to 64, they constitute second largest jump. So these are the very, surprising facts. Research also says that older people are more likely to be successful for the obvious reasons. For example, I would like to tell you here about the owner of KFC. You must have heard, right? The owner of KFC here, he started his business very late, at a very senior age. When he got retired, then he thought of committing suicide as well once. If you recall his story, उन्होंने suicide commit करने के लिए भी सोचा था, लेकिन but then his enthusiasm, his right mindset, focused attitude, boosted him up, and then he started, he realized his passion for cooking. He had a recipe of a very delicious chicken. Just he claimed that आपने ऐसा चिकन कभी खाया ही नहीं होगा, and seriously हमने नहीं खाया था. And आज KFC, it is around in more than 20,000 locations in different countries. So this is one of the perfect examples that जो entrepreneurship है या जो entrepreneurs हैं वो सिर्फ young नहीं है, सिर्फ youth नहीं है, क्योंकि उसकी कोई age ही नहीं होती. जैसे मैंने बोला कि older people are more likely to be successful for the obvious reason because उनके पास experience बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपनी पूरी life experience में गुजारी है, कितने lessons हैं, कितना failure देखा है, and then जब अपना काम करने की बारी आती है, वो सारा जो उनका experience past का होता है, वो उसमें डाल देते हैं, they become successful. One of the economists named David from the University of Chicago, he contends that experimental innovators like us, the young entrepreneurs, experimental innovators require more time to reach their peak because of the obvious reasons जो मैंने यहाँ पर older people के लिए बोले हैं, right? Next, Warren Buffett's habits. There are certain habits, I would like to ask you one question. आप comment section में साथ साथ लिखते जाइएगा. अपनी आदतें बदलनी easy है या डॉक्टर बनना easy है या entrepreneur बनना easy है या पेंटर और सिंगर बनना easy है? What is easy for you? अपनी आदतें बदलना, अपने संस्कार बदलना, हैबिट्स बदलना या अपना प्रोफेशन को अचीव कर लेना वो easy है? डॉक्टर बनना इजी है या एंटरप्रेन्योर बनना इजी है? यू अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा साथ साथ. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट हैबिट्स आर इजी टू चेंज और accomplishing your goals is easy, right? So dear my friends, there are certain habits that I would like to take here. There are 8 habits which are defined by Warren Buffett. He is one of the business tycoons from America and he's a big shot there. एंड मेरे को बहुत पर्सनली इनकी जो 8 हैबिट्स हैं बहुत अच्छी लगी हैं एंड मैं वो इनकलकेट भी कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, बट देन अगेन फॉर अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दीज हैबिट्स आर रिक्वायर्ड. And the very first habit is, okay, I'm not going to read here because I have a separate slides there. The first habit is reading plus numbers. कहते हैं कि जितना आप रीड करोगे, हमने स्कूलिंग में बहुत रीड किया, कॉलेज लाइफ में रीड किया, लेकिन फिर कॉलेज के बाद हमारी जो रीडिंग हैबिट है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है, पीछे रह जाती है. इट शुड नॉट बी द केस. इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू अडॉप्ट दिस रीडिंग हैबिट. अगर मैं वॉरेन बफेट की बात करूं, ही वाज अ वेरी विरोशियस रीडर एंड उनकी जो डेली रूटीन थी, उनकी जो डेली रूटीन है दैट वाज he used to read 5 newspapers per day, 5 to 6 hours of reading material. I was surprised to know about him that उन्होंने उनकी जो पहली एक किताब थी वो जब वो 8 इयर्स के थे, 8 सालों के जब थे, उन्होंने फर्स्ट एक किताब पढ़ ली थी. और हम लोग अभी तक आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ रीडिंग बुक्स, उन्होंने 8 साल में करा था. तो दैट इज व्हाट, तो आपकी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको जितनी नॉलेज वो गेन कर सकता है
rather than of thinking of losses and profits. जितनी knowledge वो gain कर सकता है उतना ही उसके लिए अच्छा होगा. He said that 75% of the self-made millionaires read at least 2 books per month. First reading trick is the science of learning. सीखना है कुछ, you know, and then know, okay, it is like जितना आप क्यों, why I'm focusing on the reading, why Warren Buffett focused on reading, कि reading होनी चाहिए. जितना आप knowledge gain करोगे, जितनी आप read करोगे ना, to be very honest, ये तो मैंने भी अपने आप पर you know experiment करके देखा है. जो reading है ना, it inspires you to think what not to do rather than of just thinking what to do. हमें सबको पता है कि हमने क्या करना है, बट हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना. दैट इज वाई हमारा जो टाइम है वो काफी खराब होता है, वेस्ट होता है. तो रीडिंग एक ऐसी हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं जो हमें रियलाइज करा सकती है कि हमें क्या नहीं करना. व्हाई? बिकॉज ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट प्रोसेस ऑफ रीडिंग ट्रेन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ ब्रेन. यू नो, वो ब्रेन में ऐसा जम के बैठ जाता है कि आपका जो ब्रेन है वो माइंड के साथ जो कनेक्शन है वो बताता रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना. और ये डेवलप तभी होगा जब आप रीडिंग हैबिट अपनी स्टार्ट करोगे. हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. जी, हम 9 से 5 नौकरी पे जाते हैं, घर आते हैं, घर के काम होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है. भाई साहब, वॉरेन बुफे के पास भी टाइम उतना ही है, रतन टाटा के साथ भी उतना ही है, रितेश अग्रवाल के पास भी उतना ही है, आपके पास, मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं. वी हैव 24 आवर्स. बट हाउ टू यूटिलाइज दोज 24 आवर्स इज अ गेम. और वो गेम तभी होगी when you are clear of your vision, when you are clear of your mind. Now there are certain rules to read. To very quickly I'll wrap up. Put your smartphones away. जब भी आप कुछ रीड कर रहे हैं, अपना जो मोबाइल फोन है वो साइड पे रखेंगे. You will not let the mobile phone be a distraction for you. No internet or television. Of course, बाहर टीवी चल रहा है, कईयों को आदत होती है जब वो पढ़ रहे हैं, बच्चों को आदत होती है टीवी चल रहा है और वो साथ में अपना होमवर्क कर रहे हैं. That is a bad habit. Reading rhythm, it means rhythm is, अगर आपको पढ़ना नहीं अच्छा लगता, start reading, take a book, अपनी favorite book उठाइए, 10 pages read कीजिए, take a small break and then recall after 10 minutes, recall आपने 10 pages में क्या पढ़ा and then start another 10 pages. Likewise अपनी habit change करो. एंड एक हैबिट को अपनाने के लिए, एक न्यू हैबिट को अपनाने के लिए, डेवलप करने के लिए यू रिक्वायर 21 डेज, मिनिमम 21 डेज. 21 दिन अगर आपने रीडिंग की, 22वें दिन आपको अंदर से ही कुछ मिसिंग होगा कि हाँ मैंने अब रीडिंग शुरू करनी है. तो दैट इज द सर्टेन रूल्स टू रीड एंड द फर्स्ट हैबिट दैट इज रीडिंग. सेकंड इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंस इन लाइफ. You know, it's a very Buffett's central principle, that is investment is a principle of compounding. Now what compounding is actually? It's a process of reinvesting your earnings. आपके पास जो है अभी, आप उसको reinvest करो. अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप उसको reinvest करो. अगर आपके पास knowledge है, आप उसको reinvest करो. अगर आपके पास ideas हैं, उसको reinvest करो. इससे क्या होगा, ये आप डबल हो जाएगा. Compounding is a process of reinvesting your earnings in your principal to earn exponential return as the next growth is on a bigger platform or in a bigger principle, right? तो क्लब्स, अगर मैं इसको रीडिंग के साथ मर्ज करूं और कंपेयर करूं, रिलेट करूं, then clubs reading with compounding, that is read 500 pages every day. I mean it seems tough. 500 की तो एक किताब पूरी आती है, वो भी अगर आप एक दिन में पढ़ लोगे, repeat it again and again, and then your knowledge will be your knowledge जो build up होगी, that will be like a compounding trust. अब ultimate trick क्या है? Understand the fact that whatever we decide in life, हमने जो भी decide किया है life में, you have to remain consistent to it. आप उसका बाद में आपको regret नहीं होना चाहिए कि मैंने क्यों किया ये, मैंने ये decision क्यों लिया, मैंने ये step क्यों उठाया, ये regret नहीं होना चाहिए. This is one of the qualities that an entrepreneur should develop in himself. You should ignore the short-term benefit. You should just focus on the short-term goals. So this is the principle of compounding that Warren Buffett has described. Third habit is the circle of competence. हर एक entrepreneur में, हर एक बंदे में कोई ना कोई competitive skill होती है. चाहे वो dancing है, चाहे वो fitness freak है, चाहे वो singing है, cooking है. But करना क्या है? When to act while investing. आपने अपनी एनर्जी, आपने अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये एक एंटरप्रेन्योर को बहुत जरूरी है समझना.
ये नहीं है कि आपके रास्ते में जो चीज आ रही है यू विल ग्रैब इट, नो, इट इज सेड यू शुड नॉट ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी, माइट भी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई ही ना हो। तो थिंक वाइजली व्हेन टू एक्ट, अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस, कहाँ पे मेरे को फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में, कहाँ पे मेरे को शॉर्ट टर्म गोल में मेरे को फायदा होगा, दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। फैक्ट क्या है, यू विल सक्सीड विद योर स्ट्रेंथ्स बट यू विल फॉल विद योर वीकनेसेस। अगर मैं बोल अच्छा सकता हूं पर मैं लिख अच्छा नहीं सकता, इसलिए अगर मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा ना, इफ आई ट्राई इट्स गुड, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा देन वो आपकी वीकनेस है, आप गिर जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बेटर इज टू इन्वेस्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है, राइट। मैं लाइक इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो लेडीज हैं घर पे उन्होंने अपने कुकिंग culinary जो स्किल्स हैं उनके ऊपर बहुत काम किया है, एंड देन दे स्टार्टेड देयर होम बिजनेसेस, उन्होंने केटरिंग का काम शुरू कर दिया, शेफ बन गए हैं वो लोग, वो खाना बेचते थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। दैट इज व्हाट, उन्होंने अपनी स्किल को पहचाना, दे हैव इन्वेस्टेड इट, एंड देन शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे वो 3-4 महीनों के लिए था, दे हैव अर्न समथिंग। This is how the circle of competence goes on. Fourth habit is power of isolation, thinking, and no internet. It's my very favorite topic, thinking. Be a person of independent thought process. Rather than कि लोग आपको बताएं क्या सोचना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैंने क्या सोचना है। You should have an independent thinking. तभी मैंने अपना जो मेरा स्टार्ट था इस वेबिनार का इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि कल हमारा आज़ादी दिवस है, लेकिन जब तक हमारी सोच आज़ाद नहीं होगी, आई एम सॉरी टू से, यू विल नेवर ग्रो, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर दैट यू शुड हैव इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेसेस, रादर देन जिन्हों कहने पर लाई लाग और रैट रेस, उसमें नहीं जाना हमने। सो देन करना क्या है, सेट, थिंक, रिलैक्स। Why? Because जो अगर मैं बात करूँ वॉरेन बुफे की, then he spends 80% of his time just thinking and reading and not thinking the negative thoughts. He thinks about his business. जो entrepreneurs होते हैं और जो business tycoons होते हैं, वो सिर्फ 24 घंटे अपने business के बारे में सोचते हैं। That is how you will grow. That is 80% of your thinking should be there, and 20% of the action should be there. Strategize your work. कई कहते हैं कि मेरे को ना काम करने का तरीका नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आती। आपको स्ट्रैटेजाइज करना होता है अपना काम, कैसे अपने क्या आइडिया पे काम करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कितने हमारे जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको कैसे हमने यूज करना है, रिसोर्सेज को, चैनल्स को, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज। नो इंटरनेट अ हिंड्रेंस। अगेन ये वॉरेन बुफेट का था, बट आई डोंट बिलीव कि ये आज के टाइम पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके टाइम पे वॉरेन बुफेट सेड दैट जब आई वाज वर्किंग, आई वाज एट द पीक, मेरे ऑफिस में ना तो लैपटॉप था, ना फोन था, ना इंटरनेट कनेक्शन था। आई हैड जस्ट वन लैंडलाइन फोन टू कनेक्ट विद टीम मेंबर्स, नथिंग एल्स। सो ये उस टाइम का जरूर होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम पे देयर इज वर्क विदाउट इंटरनेट और स्मार्टफोन्स, अगर मैं अपनी भी बात करूं। सो बिसाइड्स दिस, द अबव पॉइंट्स, you have to think, you have to power of isolation means you have to think, sit in an isolated room, अकेले में सोचो क्या करना है, think and just read, thinking and knowing. Fifth is inner scorecard or the outer scorecard. Having an inner scorecard means to be satisfied with your opinions. अगर मैंने कुछ बोला है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, अगर मैंने कुछ बोला है then don't regret it later on. You are independent, your words are independent, your thoughts are independent. So the big question about how people behave is whether they have got an inner scorecard or the outer scorecard. It helps if you can be satisfied with an inner scorecard. You should not pay your ears to what others think. लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हमने सोसाइटी को नहीं सुनना। Being an entrepreneur, you have to have an independent approach. अपना जो inner स्कोर कार्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, रादर देन आउटर स्कोर कार्ड। आउटर स्कोर कार्ड इज सोसाइटी। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे, बट आपका जो इनर स्कोर कार्ड है, आपका जो इनर माइंड है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा कि चाहे जितने मर्जी मेरे को क्रिटिसिज्म मिल रहे, इफ आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस, आई विल डू दिस एंड आई विल। It means toughness about the financial decisions. Remain true to yourself.
that your inner scorecard should be more stronger than the outer scorecard. Sixth habit is do what you love. The science of not getting bored and eventually succeed. हम क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है उनका गोल क्या है, वो क्या, अगर वो कोई जॉब भी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं वो जॉब कर क्यों रहे हैं, बिकॉज दे डोंट लव व्हाट दे डू. और जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करोगे, अगर मेरे को बोलना पसंद है, आई लव माई जॉब, अगर वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, अगर एंकरिंग है, होस्टिंग है, मोटिवेशनल टॉक्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, आई लव टू डू दैट, आई लव मेकिंग कनेक्शंस. अगर मैं ये सब छोड़कर अब बिजनेस में आ रहा हूँ, अगर if I talk, I've told you in the starting that I have a business, my family, my father runs a business. अगर मैं उस business में आ जाता हूँ जो मैं पसंद ही नहीं करता, I don't love doing that job, तो मैं अपना जो मेरा time है वो waste होगा. और majority of the people को जो हैं, they don't know what they are doing, they are not loving what they are doing. So for you guys being a young entrepreneurs, you should be very clear, आपको वही करना है जो आपको पसंद है, जो आप love करते हैं. Then is learn more skills, you know, that's what I'm saying कि जो entrepreneur हैं वो उनके बहुत जो approach है बहुत varied है, बहुत wide है, वो बहुत कुछ और सीख सकते हैं. अगर एक शेफ है तो शेफ के साथ वो सिंगर भी हो सकता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकता है. That is how you have to learn more skills to add to your overall personality, the aura. You shouldn't get regret on deathbed. This is a very important point. अभी कर लो जो करना है, जो पसंद है अभी कर लो, बिकॉज जब आप डेथ बेड पे होंगे ना, तब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए. सो दिस इज माय एडवाइस टू यू ऑल, adopt this habit of what you are doing, what you love, you should do that, because after your time when you are on deathbed, tab aap agar ye bolenge ki kash main ye kar leta, then that makes no sense. So adopt this habit of Warren Buffett. Then again मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि cash is king, really it's question mark here. हम बोलते हैं पैसा ही सब कुछ है, बिजनेसमैन की सोच क्या है, पैसा सब कुछ है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की सोच क्या होनी चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है, it is important, but then again something else is important. What is that something else? Warren also believes cash to be the god of the business, especially during the times of crisis. ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने हमें सिखा दिया है पैसे की कीमत, हमारी कितनी सेविंग्स हैं हमें पता नहीं. जितना हमने अभी 3-4 महीने गुजारे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने जो अंदर पैसा सेव हुआ है वो निकाला है, बिकॉज बिजनेस तो था ही नहीं. वहां पर कैश की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बुफेट सेज दैट द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन हैव इज कैश. बिकॉज अगर आपका बिजनेस अच्छा है ना, अगर आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, then जो कैश है that is worthless in the long term, right? A good business is going to become more worth over the time. Now what is the best option? Invest in government bonds, mutual funds. टिप क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी फॉर एग्जांपल 30,000 सैलरी है, हमारा 15-16 या 20,000 का मैक्सिमम का खर्चा है घर का, हमने वो निकाल दिया, 10,000 है जो हमने सेव कर दिया. Often people do like this, यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है. लेकिन वॉरेन बुफे कहता है इसका ऑपोजिट जाओ, ऑपोजिट चलो. कैसे ऑपोजिट चलोगे? आपकी फॉर एग्जांपल इफ यू आर अर्निंग 30,000 पर मंथ, आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले कहाँ इन्वेस्ट करना है. दैट इज ईदर इन द म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा. एंड देन जो बचता है उसकी आप सेविंग्स करो, उसको जो आप बचता है उससे अपना घर चलाओ या अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो पूरे करो. So this is the opposite approach, and this is the approach that he suggests for the young entrepreneurs, because entrepreneurs are the opposite of the normal people. They think opposite, they are opposite. So cash is really not a game. So the last habit he suggested is invest in yourself, pay yourself first. हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, वो यहाँ पर है तो मैं उसकी मदद कर दूं, वो यहाँ पे मैं उसकी मदद कर दूं. अपनी मदद कौन करेगा? अपनी मदद आप खुद करोगे, और वो कैसे कर पाओगे? अगर आप अपने खुद में इन्वेस्ट करोगे. यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम. व्हाई? उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज वो तो एक लाइफ लॉन्ग है, टैक्स नहीं लगता, इन्फ्लेशन फ्री है, और हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहे. सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज मॉनेटरी. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अच्छे कपड़े पहनिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, ब्रांडेड जूते पहनिए, गाड़ी अच्छी रखिए. I'm not talking about those investment, the monetary. I am talking about the skill set. अपने में इन्वेस्ट कैसे करोगे?
if you are, you know, अगर आपकी एक 9 to 5 की जॉब है, अगर आपने अपना कोई स्टार्टअप भी शुरू किया है, साथ साथ आप क्या स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, यू नो कोई आर्ट है, कोई यू नो कल्चरल कुछ सीखना है आपने, दैट इज यू हैव टू इन्वेस्ट all those skills in you besides that job. So these are very, you know, important 8 habits that Warren Buffett has suggested, and I believe कि ये जो 8 habits हैं आपको बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए अपनाना, and take 21 days to adopt all these, you know, habits in order to grow in your entrepreneurship, right? अब moving ahead to my next last segment of this presentation, that is हर बंदे की जिंदगी में, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, और एनीबडी एल्स, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. Here I will share one short story. Once a monk, he entered into airport, and airport पे गया, and then the officials asked that monk